মেধাবী ন্যাশনাল স্কলারশিপ স্কিম আন্ডার এইচআরডিএম। এইচআরডিএমের আন্ডারে যে মেধাবী ন্যাশনাল স্কলারশিপ স্কিম একটা রয়েছে, সেই তার অ্যাডভার্টাইজমেন্ট বেরিয়েছে 2021-এর জন্য, এবং তার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশন এই ভিডিওতে আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরতে চলেছি। আর হ্যাঁ, আমি তোমাদের বন্ধু গৌতম মাঝি। এখন এই ভিডিওটি হিন্দিতে রয়েছে, মানে লেখাগুলো হিন্দিতে রয়েছে। আই এম ভেরি পুয়ার ইন হিন্দি, আমি জানি কতটা হিন্দি পড়ে ঠিকঠাক বলতে পারবো, কারণ আমি ইংলিশ অ্যাডভার্টাইজমেন্ট খুললাম কিন্তু কোনোভাবেই সেটা খোলা যাচ্ছে না। তো অতএব হিন্দিটাই ইজিলি অ্যাভেলেবেল। তো আমি হিন্দিতে যতটুকু তোমাদের সম্ভব পড়ে শোনানোর চেষ্টা করব। দেখতেও তোমরা পাচ্ছ, অনেকেই হিন্দিতে এক্সপার্ট আছো, ইউ ক্যান ইজিলি আন্ডারস্ট্যান্ড। সো পहले देख लीजिए इसमें जो है, আমি হিন্দি চেষ্টা করবো একটু বলার। এটার নাম হচ্ছে, স্কলারশিপটার নাম মেধাবী ন্যাশনাল স্কলারশিপ স্কিম। এই স্কলারশিপ স্কিমে একটা কিছু টাকা অ্যামাউন্ট দেওয়া হয় সবাইকে দেওয়া হয়, মাধ্যমিক মানে 10 স্ট্যান্ডার্ড থেকে এবং আপার ক্লাস পর্যন্ত। মোস্ট প্রবাবলি এটার এলিজিবিলিটি লেভেল হচ্ছে 40 বছর পর্যন্ত অ্যাপ্লাই করতে পারে। খুব 500,000 এরকম একটা অ্যামাউন্ট দেওয়া হয় স্কলারশিপ হিসেবে, যাতে করে বিভিন্ন পরীক্ষার ফর্ম ফিল আপ এবং বিভিন্ন পরীক্ষার জন্য তারা ওই টাকাটা হেল্প হতে পারে। তো এখানে যেটা ফার্স্টেই বলা হচ্ছে, পঞ্জীকরণ আরম্ভ নীতি, অর্থাৎ যেদিন থেকে রেজিস্ট্রেশন স্টার্ট হবে সেটি 7 অগস্ট থেকে স্টার্ট হয়ে গেছে। পঞ্জীকরণ অন্তিম তিথি, অর্থাৎ এই রেজিস্ট্রেশনের শেষ তারিখ হচ্ছে 19শে সেপ্টেম্বর। এই দুটো ডেট খুব ইম্পর্ট্যান্ট। 19শে সেপ্টেম্বর, তো এখনও সময় আছে। পরীক্ষা, এর একটা পরীক্ষা হবে, পরীক্ষাটা হচ্ছে 3 অক্টোবর। उत्तर बालिका प्रश्न संबंधी आपत्ति यदि है, उत्तर तालिका 4 অক্টোবর। পরীক্ষা পরিণাম অর্থাৎ পরীক্ষার রেজাল্ট মোস্টলি বেরোবে 6 অক্টোবর। প্রমাণপত্র ব্যাংক ইয়া খাতা জমা করনে কি তিথি, অর্থাৎ ব্যাংকের ডিটেলস দেওয়ার জন্য 6 থেকে 9 অক্টোবর। কিন্তু যারা পাস করবে তাদের জন্য এটা কিন্তু চাওয়া হবে ব্যাংকের ডিটেলস, তার আগে ব্যাংকের ডিটেলস চাইবে না। সত্যাপন ইয়া ছাত্রবৃত্তি বিতরণ, অর্থাৎ ছাত্রবৃত্তি স্কলারশিপ দেওয়া হবে 9 থেকে 11 অক্টোবরের মধ্যে। সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া সমাপ্তি 15 অক্টোবর। 15 অক্টোবর মধ্যে সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। যেখানে লেখা আছে, কেবল सफल या योग्य छात्र को ही बैंक खाते की जानकारी देनी होगी सॉरी। তো যারা পাস করবে তাদেরকে একমাত্র ব্যাংকের ডিটেলস দিতে হবে। এখন সবথেকে ইম্পর্টেন্ট বিষয় হচ্ছে 19 তারিখে লাস্ট ডেট, এবং এখনও সময় আছে, এখনও তোমরা এই মেধাবী ন্যাশনাল স্কলারশিপের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারো। এখানে কি আছে দেখে নাও। এখানে महत्वपूर्ण निर्देश, अम्बार्थी समाधान 3 छात्रवृत्ति परीक्षा 2021 में आवेदन करने के पहले अभिसूचना को ध्यान से पढ़े। नंबर 2, आवेदक का दायित्व है कि वो वेबसाइट पर नियमित रूप से जाए और परीक्षा संबंधी सभी जानकारी और या निर्देश को समय से पहले संगठन आवेदक द्वारा वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी और या निर्देशी पर ध्यान ना दिए जाने की कारण हुई हानि के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। तभी नोटिफिकेशन सेक्शन से नियमित तैयारी पर जानकारी लेते हुए ईमेल और फ़ोन कॉल एसएमएस आदि की प्रतीक्षा ना करे। और দ্যাট মিনস নোটিফিকেশন, যে ওয়েবসাইটে নোটিফিকেশন আছে, নোটিফিকেশন যেতে বলছে, সেখান থেকেই তারা সমস্ত ডিটেলস পাবে। এবং এরকম কোনো মোবাইল ফোনে মেসেজ আসবে, এর ওয়েট না করতেই বলছে। वीडियो निर्देश देखने के लिए यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। उस यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं आप लोग। सभी निर्देशों को पालन सख्ती से पालन अनिवार्य है। ऐसा नहीं होने की स्थिति में आवेदक को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अच्छा, ऊपर दी गई सभी तिथियों का, अच्छा ऊपर दी गई सभी तिथियों का पालन करना অতি অনিবার্য, অর্থাৎ উপরে যে সমস্ত ইনফরমেশন দেওয়া আছে, এই যে ডিটেলসটা বলেছে, এইটা মেনে চলতে হবে, মানে এই অনুযায়ী সমস্ত বিষয়গুলো হবে। अच्छा, এটা তো গেল। এবার হচ্ছে, आवेदक को परीक्षा के समय परीक्षा संबंधी किसी की समस्या होने पर परीक्षा समाप्ति के तुरंत पश्चात अगले 24 घंटे के अंदर उसकी जानकारी ईमेल द्वारा संगठन को दें। অর্থাৎ যদি কোনো রকম পরীক্ষা সম্পর্কিত কোনো সমস্যা হয়ে থাকে বা কিছু বলার থাকে, তাহলে এই ইমেল আইডিতে গিয়ে ইমেল করতে হবে।
এবার মেধাবী স্কলারশিপটা কী না, মেধাবী হচ্ছে মানব সংসাধন বিকাশ মিশনকে একটা সেকশন। এখানে কি বলা হচ্ছে একটু দেখে নেওয়া যাক। এখানে বলা হচ্ছে কেবল, এটা কাদের জন্য, এটা হচ্ছে केवल मेधावी और मेधावी द्वारा ही होंगे। अच्छा, मानव संसाधन मिशन कमीशन के मेधावी राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत समाधान 3 छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करना ही है। ऑनलाइन आवेदन केवल मेधावी ऐप पर ही होंगे, अन्य किसी माध्यम से नहीं। মেধাবী অ্যাপ থেকে এটাকে অ্যাপ্লাই করতে হবে। এবং এখানে যেটা বলা হচ্ছে, মেধাবী অনলাইন আবেদনপত্র শুরু হচ্ছে 7 অগস্ট থেকে এবং শেষ হচ্ছে 19 অক্টোবর, যেমন বললাম একটু আগে। আচ্ছা, এখানে কি কি আছে একটু দেখে নেওয়া যাক। যে परीक्षा का उद्देश्य समाधान, छात्रवृत्ति परीक्षा का उद्देश्य समाज के सभी वर्गीयों के मेधावी छात्रों को 2 नगद छात्रवृत्ति छात्रों छोटी 2 नगद छात्रवृत्ति यानी কিছু টাকা দেবে, একটা হচ্ছে 300 টাকা, 500 টাকা, 1000 টাকা प्रदान करने ही जिसका उपयोग करने का छात्र सरकारी नौकरी फॉर्म, विभिन्न प्रवेश परीक्षा आवेदन फॉर्म, छात्रवृत्ति आवेदन फॉर्म जैसे विभिन्न मेधावी छात्रवृत्ति परीक्षा स्वाभिमान, स्वावलंबन, सक्षम, न्यू जेन एवं अन्य विभिन्न प्रकार से सशुल्क आवेदन फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं। অর্থাৎ এখানে যে টাকা দেওয়া হবে 300, 500, 1000 টাকা, এই টাকাটা কিন্তু তারা বিভিন্ন পরীক্ষার জন্য, পরীক্ষা আবেদনপত্রের জন্য ইউজ করতে পারবে। समाधान 3 के लिए कोई आवेदन पूर्णत निःशुल्क है। এখানে अप्लाई করার জন্য কোনো पैसा नहीं लगेंगे। परीक्षा के माध्यम से अब मेधावी छात्रों को विभिन्न फॉर्म जिसके शुल्क जमा करना पड़ता है, ऐसे फॉर्म को पैसे की कमी के कारण भरने से वंचित नहीं होना पड़ेगा। अच्छा, परीक्षा की योजना, इसमें जो है परीक्षा का स्वरूप, परीक्षा का नाम है तर्क शक्ति परहैप्स डिबेट, प्रश्न संख्या 6, अधिकतम अंक 6, परीक्षा का टाइम 10 मिनट, मात्रात्मक अभिरुचि 6, अधिकतम अंक 6, सामान्य अध्ययन 4, अंग्रेजी 4, प्रश्न संख्या है, प्रश्न अधिकतम अंक 4, परीक्षा का समय 10 मिनट, अलग से 2 भागों के लिए अलग अलग टाइम नहीं होंगे। ये आप देख लीजिए। एज इट इज़ इन हिंदी, सो आई मे नॉट बी in a position to tell you in detail properly. Perhaps I may miss some points which are quite important, but I'm trying my level best to just translate into Hindi, and my Hindi is not so good, so I'm getting stuck sometimes, but still I'm trying. Okay, इसमें जो दिया गया है सूचना, अंग्रेजी इंग्लिश लैंग्वेज के प्रश्न छोड़कर सभी प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में লিখি होंगी, অর্থাৎ দুটো ভাষাতেই থাকবে, ইংরাজি এবং হিন্দি দুটোতেই থাকবে। गलत उत्तर लिए दंड, অর্থাৎ যদি কোনো ভুল উত্তর তাহলে সেক্ষেত্রে নাম্বার কাটা যাবে। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उसे प्रश्न के अंत के 1/3 अंक के 1/3 1/3 अंक दंड रूपे कट लिए जाएंगे। सूचना जो है, परीक्षा केवल मेधावी और इसको एंड्रॉयड ऐप, मोस्ट प्रोबेबली मेधावी एंड्रॉयड ऐप के माध्यम से ही होंगे। इस गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। মেধাবী যারা যারা এখানে ইন্টারেস্টেড, মেধাবী অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ তোমরা डाउनलोड कर नियो प्ले स्टोर থেকে, সেখান থেকে অ্যাপ্লাই করতে পারো, সেখান থেকেই পরীক্ষা হবে। इसे डाउनलोड करने के लिंक वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। इसे এই যে ওয়েবসাইট দেওয়া আছে, এখানে গিয়েও তুমি এই মেধাবী ডাউনলোড অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ ডাউনলোড করতে পারো। এখানে যেতে হবে www.medhaviionline.org, এখান থেকে গিয়ে পেয়ে যাবে। पर भी उपलब्ध है, परीक्षा संबंधी सभी जानकारी और निर्देश वेबसाइट एवं इस ऐप पर इस पर उपलब्ध होंगे, অর্থাৎ এই মেধাবী অ্যাপে পরীক্ষা সম্পর্কিত সমস্ত ইনফরমেশন পেয়ে যাবে। अच्छा, अब की सलाह ही जाती है कि मेधावी ऐप पर उपलब्ध मॉक टेस्ट या
अभ्यास टेस्ट करे जैसे परीक्षा के प्रारूप को समझने के। अच्छा, उसमें जो जिस ऐप में कुछ मॉक टेस्ट वगैरह है, तो आप लोग के मॉक टेस्ट वगैरह कंप्लीट कर लीजिए। उसमें वो ऐप में जाने के बाद आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा, तो मॉक टेस्ट कंप्लीट करने के बाद आपको कुछ आइडिया मिल जाएगा। तो ये करने के लिए करने से आप छात्रों को अच्छा होगा। परीक्षा में 4 भाग होंगे। अभ्यर्थी कोई सभी प्रश्न को उत्तर नियत समय में देने होंगे। किसी भी प्रकार की विसंगति को रोकने के लिए परीक्षा के टाइम कोई ब्रेक बटन नहीं दिया जाएगा। अर्थात कोई भी अभ्यर्थी वापस जाकर ना तो उत्तर बदल सकता है और ना ही छोड़ गए प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए प्रश्न का या तो उत्तर देना होगा व बिना उत्तर दिए ही अगले प्रश्न पर जाना होगा। अभ्यर्थी, आई थिंक एप्लीकेंट मोस्ट प्रोबेबली, गए समय में ही प्रश्न के उत्तर ही देंगे। अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा तथा समय समाप्त होने पर परीक्षा स्वयं ही जमा हो जाएगा। অর্থাৎ এখানে যে প্রশ্নগুলো রিপিট করা যাবে না, অর্থাৎ একটা প্রশ্ন ছেড়ে গেলাম আবার একটা করলাম, এমন হবে না। হয় উত্তর দাও, তা নাহলে এখানে স্কিপ করে চলে যেতে হবে। परीक्षा में कैलकुलेटर, पेन, पेंसिल या पेपर का उपयोग किया जा सकता है और इसमें कैलकुलेटर, पेन, पेंसिल या आप यूज़ कर सकते हैं। परीक्षा के शुल्क सभी व्यंग्यों को अभ्यर्थी कोई ऑनलाइन टेस्ट के लिए पंजीकरण पुनर्तया निःशुल्क है। ऑनलाइन टेस्ट के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। অর্থাৎ এখানে কোনো এই অনলাइन অ্যাপ্লিকেশনের জন্য কোনো ফিস দিতে হচ্ছে না। और पंजीकरण करने भर से ही कोई भी अभ्यर्थी छात्रवृत्ति के लिए पात्र नहीं होगा। निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ही छात्रवृत्ति के लिए पात्र होगा। অর্থাৎ রেজিস্ট্রেশন করলেই সে টাকা পাবে এমনটা নয়, পরীক্ষায় পাশ করলে তবেই সে হবে। এখন এই ছাত্রবৃত্তি কত হচ্ছে? कुल 3549 अभ्यर्थियों को छात्रवृत्ति के लिए चुनना तय किया गया है, जिसमें से 1457 अभ्यर्थी के टाइप ए छात्रवृत्ति दिया जाएगा। उदाहरण स्वरूप ₹1000 केवल एक बार। 997 अभ्यर्थी को टाइप बी छात्रवृत्ति दिया जाएगा। उदाहरण 500 केवल एक बार। 1905 अभ्यर्थी को टाइप सी छात्रवृत्ति दिया जाएगा। उदाहरण 300 केवल एक बार। अर्थात ये जो टोटल छात्रवृत्ति है एक बार है, एक बार ही ये रुपया दिया जाएगा। छात्रवृत्ति की संख्या मेरिट सूची और या आवेदकों को संख्या एवं अन्य कारण को अधीन है, जैसे कि भी समय घटाया और बढ़ाया भी जा सकता है। इसका निर्णय संगठन के अधीन ही छात्रवृत्ति केवल एक बार ही दिया होगी। Okay, that means this scholarship will be given only one time, so it's not like it will be recurrent that every month or every year it will be deposited to the account of the applicants, not like that. It is only one time scholarship, so एक ही बार दिया जाएगा। ओके, सफल अभ्यर्थी को छात्रवृत्ति का भुगताता परिणाम घोषणा के पश्चात केवल सफल যারা পাশ করবে তাদেরকে এর দিতে হবে ছাত্রবৃত্তি ভুগতান সফল ব্যাংক খাতে में। অর্থাৎ যারা পাশ করে তাদেরকে ব্যাংকের আইডি দিতে হবে, ব্যাংকের আইডি থেকেই ব্যাংকের ডিটেলস থেকে সে ব্যাংকেই টাকাটা ট্রান্সফার হবে। ओके, पात्रता की शर्त उम्र न्यूनतम 16 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष। অর্থাৎ 16 বছর থেকে 40 বছর পর্যন্ত যে কেউ এখানে অ্যাপ্লাই করতে পারে। सभी वर्गों के अभिष्टि के लिए সবার জন্য একই জিনিস রয়েছে।
আর কি আছে নিয়ম, राष्ट्रीयता भारत का नागरिक होना चाहिए, नेपाल की प्रजा या भूटान की प्रजा या ऐसा तिब्बती शरणार्थी जो भारत में स्थायी रूप में रहने के इरादे से पहले जनवरी 1962 से पहले भारत आ गए हो, या कोई भारतीय मूल व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से रहने के इरादे से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्व अफ्रीका देश, केनिया, उगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया, जाम्बिया, मालावी और इस जगह से आए हैं। न्यूनतम शैक्षिक अर्हता, दैट मीन्स मिनिमम नेशनल क्वालिफिकेशन और मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के पास मैट्रिक अर्थात 10th पास होना चाहिए, 10th केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड से पास होना चाहिए या समकक्ष होना चाहिए। मैट्रिक 10 एक न्यूनतम शिक्षिक অর্থাৎ 10 ক্লাস পাস হতে হবে। আবেদন করে कैसे, আবেদন কি করে করবে, আবেদন করার জন্য এখানে মেধাবী অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশন দ্বারা ही আবেদন করে, অর্থাৎ এই মেধাবী অ্যাপ্লিকেশন অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ ডাউনলোড করে নাও, এখান থেকেই করবে। रजिस्ट्रेशन सेशन पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म में व्यक्तिगत जानकारी को भरे, ওখানে রেজিস্ট্রেশন সেকশনে গিয়ে অনলাइन फॉर्मे पर्सनल डिटेल्स দিতে হবে। ऑनलाइन फॉर्म में फ़ोटो या सिग्नेचर अपलोड करने के आवश्यकता नहीं है, ওখানে কোনো ফটো এবং সিগনেচার আপলোড করতে হবে না। इससे पश्चात सबमिट बटन दबाकर फॉर्म को जमा करें। सफलपूर्वक जमा होने पर रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी पर ईमेल भेजा जाएगा जिसमें पंजीकरण संख्या वर्णित होगा। तब इसके बाद आपको ईमेल आ जाएगा और ईमेल में रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिया जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म जमा होने के पश्चात फॉर्म जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा है का स्क्रीनशॉट ले और संभाल कर रख ले, और इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको रजिस्ट्रेशन नंबर अच्छे से रखे। ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार्य है, उसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का डाक द्वारा नया भेजें। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन তোমরা করবে মেধাবী অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশনে। আর এখানে কি আছে, अच्छा केवल सफल या सफल होंगे ऐसे अभ्यर्थी को बैंक खाते की जानकारी देनी होंगे, और যারা পাশ করে তাদেরকে শুধুমাত্র ব্যাংকের ডিটেলস দিতে হবে এবং जाने के जानकारी मेधावी ऐप के क्लेम स्कॉलरशिप सेक्शन के जाकर देनी होगी। क्लेम स्कॉलरशिप सेक्शन परीक्षा परिणाम घोषित होने के पश्चात एक्टिव कर दिया जाएगा, जो केवल दी होगी तिथियों के लिए ही অ্যাক্টিভ रहेगा। অর্থাৎ যারা পাস করবে এই যে ক্লেম স্কলারশিপের যে এখানে যে বাটনটা আছে সেটা কিন্তু 21 থেকে 23 তারিখ এই পর্যন্ত অ্যাক্টিভ থাকবে। যারা পাস করবে তারাই গিয়ে ওখানে ব্যাংকের ডিটেলস দেবে। ओके, तो सफल अभ्यर्थी एप्लीकेंट से अपेक्षा की जाती है कि वो गूगल प्ले स्टोर से अपने मूल्यवान रिव्यू प्रदान करे, जिससे कि अन्य अभ्यर्थी की मेधावी ज्ञान वित्त योजना का लाभ उठा सकते हैं। ও মূল্যবান রিভিউ প্রদান করে, আচ্ছা রিভিউ দিতে বলছে, যদি অ্যাপটা যদি ভালো লাগে তো রিভিউ দিতে দেওয়ার কথা বলছে। छात्रवृत्ति परीक्षा के मेरिट सूची की खाता टाइप ए 60% अधिक, অর্থাৎ যে পরীক্ষা হবে সেখানে 60% অধিক পেলে বা টাইপ এ, टाइप बी হচ্ছে 50% या अधिक अंक कर 60% से कम तक, सी 40% या अधिक अंक और 50% से कम। यदि टाइप ए छात्रवृत्ति अंतर्गत निर्धारित संख्या से अधिक छात्र सफल होते हैं तो उसके टाइप बी छात्रवृत्ति के लिए चुना जाएगा। छात्रवृत्ति धनराशि पत्र परीक्षा का स्थान लिखित समय, परीक्षा कখন হবে কোথায় হবে, परीक्षा के लिए संभावित तिथि 3 अक्टूबर 2021 रविवार को होंगे एग्ज़ाम। परीक्षा के समय पंजीकरण मेधावी ऐप पे ऑनलाइन टेस्ट भाग के अंतर्गत परीक्षा से जाना जाएगा।
ये एक ऑनलाइन परीक्षा है जिसे केवल মেধাবী অ্যান্ড্রয়েড সেই এই মেধাবী অ্যান্ড্রয়েড থেকেই পরীক্ষা দিতে হবে। আর এখানে কিছু ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন দেওয়া আছে, ইনফরমেশন দেখে নেওয়া যাক। এটা হচ্ছে अभ्यर्थी मेधावी छात्रवृत्ति परीक्षा में आवेदन करने से पहले आवेदन ज्ञानपूर्वक अवश्य पढ़े। उत्तर दी गई सभी तिथियों को पालन करना ही इम्पॉर्टेंट है। আচ্ছা, তো এই হলো ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন। যারা যারা ইন্টারেস্টেড তারা এখানে এই ফর্মটা ফিল আপ করে জমা দিতে পারো।